Okay, so let's start, kids. So of course we are doing with going ahead with continuity. Okay, and today is the third class of the third lecture of the chapter continuity. Okay, kids. Let's go ahead. Of course, बहुत सारी बातें मुझे आपसे बात करनी है, बट वो हम बाद में बात करते हैं. आगे बढ़ते हैं पहले. Okay, so kids, till now we have seen continuity. Okay, and यहाँ पर कुछ heading लिखा है, आप देख लो ठीक से. यहाँ लिखा है continuity in an interval. Now you might tell me, see ये क्या है? Continued interval क्या है? Okay, kids, see till now what is sum that we have solved? Okay, they were based on continuity at a point. हम लोग क्या कर रहे थे? We are checking continuity at a point. Okay, तो suppose कोई curve आपके पास है, some curve is there for you, and we were trying to check continuity at a particular point. And how do find? Go for check for a left hand limit, check for right hand limit, and check the value of f of a, and then automatically you, if all the three are equal, it becomes continuity at that point. But if I want to talk about continuity in an interval, continuity in an interval की अगर मुझे बात करनी है, पूरे इंटरवल में अगर मुझे बात करनी है, तो देखते हैं क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस मुझे मिल सकते हैं यहाँ पर. लेट मी चेक द कॉम्प्लिकेशंस. सबसे पहली बात कि सपोज आई हैव a curve, okay, some curve I have, something like this, and suppose ये आपके extreme points है, these are the extreme points. Okay, this is x equal to a, and this is x equal to b. ये आपके extreme points है, ठीक है. और आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है इन द क्लोज इंटरवल a to b, सब जगह अगर आपको चेक करनी है. अब किस आप मुझे बताओ, between a to b how many points are there? Infinite. Of course there are infinite points. A और B की जो infinite points है, और अगर infinite points है और अगर मैं हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करते बैठूंगा ना, तो मेरी उम्र खत्म हो जाएगी, मेरा पुनर्जन्म हो जाएगा, फिर भी मेरा सम खत्म नहीं होगा. Because there are infinite points, I just cannot check each and every point का continuity. It's insane to check it. So then what I should do? At that time, what do we do basically is that whichever the points which I feel are doubtful point, I can check continuity there. Like for example, now read the theory first, then I'll speak. A function f of x is said to be continuous in the closed interval a to b. मतलब कोई भी फंक्शन को continuous a to b में तभी कहा जाता है if it is continuous at each and every point in the open interval a to b. किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूस क्लोज इंटरवल में तभी कहा जाता है फ्रॉम ए टू बी. एक मिनट, या इट इज कंटिन्यूस फ्रॉम ए टू बी ओनली व्हेन इट इज कंटिन्यूस एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन द इंटरवल ए टू बी. ओके, बट किड्स यहां पर मैंने जानबूझकर ओपन इंटरवल लिखा है. कैन यू टेल मी व्हाई डिड आई राइट ओपन इंटरवल? Why not the closed interval here? क्या लगता है? I said function is continuous in the closed interval a to b if it is continuous at each and every point in the interval a to b. यहाँ पर मैंने open interval लगाया है. Open interval का मतलब ये है कि I have not spoken anything for the time being about point A and point B. You know why I have not spoken about point A and point B here? Because to check continuity at point A, to check continuity at point A, I just have to do what? Just find the right hand limit and f of A. I should not find left hand limit. Why I should not find left hand limit? Why I should not find left hand limit at x equal to A? I said why I should not find left hand limit at x equal to a. मुझे क्यों नहीं ढूंढना चाहिए? Tell me. That part is not in the interval. हाँ, आप पहली बात ये है कि बच्चे डेरिवेटिव्स के टेस्ट के लिए बिजी है.
इसके लिए बच्चे कभी बुक खोलते ही नहीं है कि राम सर ने 2 लेक्चर में क्या पढ़ाया है. ठीक है, ऑफ कोर्स डेरिवेटिव्स में बिजी होना भी चाहिए क्योंकि टेस्ट आने वाला है, लेकिन प्रॉब्लम तो वही है ना, लोग सिस्टमैटिक नहीं है. मैं लोगों को हमेशा बोलता हूं, आपको हमेशा जो जो चैप्टर पढ़ा जा रहा है उसका रिवीजन करना चाहिए जब आप क्लास में आते हो. लेकिन फिर भी इस लोगों की बत्ती बंद रहती है. दे डोंट अंडरस्टैंड एंड देन दे स्टार्ट क्रिबिंग कि मुझे मैथ्स डिफिकल्ट लग रहा है, मुझे ये चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है, वो चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है. प्रॉब्लम ये है कि यू पीपल आर नॉट फॉलोइंग द सिस्टम. बहुत बातें बाद में करूंगा, पहले मैं और कुछ बात कर लेता हूं. हाँ, so I was talking about continuity at A. Now kids, when I talk about continuity at a point, we normally what do? We find the left hand limit, we find the right hand limit, and at point A we find the value. अगर तीनों इक्वल हो गए तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है at that point. But the interval starts from x equal to A. Do you understand, kids? Do you understand? Does it start from A? Yes, sir. Yes, sir. And if it starts from A, and if I want to find continuity at A, the only method is you cannot find left hand limit क्योंकि A x का वैल्यू A से कम तो होने वाला ही नहीं है. तो A पे कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं? 2 चीज करने का. फाइंड f of A का वैल्यू, यू फाइंड f of A का वैल्यू एंड फाइंड द राइट हैंड लिमिट क्योंकि इसका राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा. To find f of A and find the right hand limit, if they both are equal, at that time we say it is continuous at x equal to A. Similarly, how to check continuity at x equal to B then? Tell me. Left hand limit and Yeah, f of B. for the left hand limit at f of B. अगर ये दोनों इक्वल हो गया तब जाके it becomes continuous at x equal to B. It means अगर कोई फंक्शन दिया है आपको और आपको पूरे इंटरवल में चेक करना है, सबसे पहली बात आपको पहला काम करना पड़ेगा वो है आपका जो फंक्शन क्लोज इंटरवल ए और बी में कंटिन्यूस होना चाहिए. सबसे पहली बात. सेकेंड थिंग ए पे कैसे चेक करना है? राइट हैंड लिमिट एंड एट पॉइंट ए. बी पे कैसे चेक करना है? लेफ्ट हैंड लिमिट एंड एट पॉइंट बी. एंड टू चेक, और ऑब्वियसली आप हर एक पॉइंट पे तो कंटिन्यूटी चेक नहीं कर सकते हो, तो हम क्या करेंगे आगे जाके मैं आपको सिखाऊंगा ऑब्वियसली कि आपको जहां जहां डाउटफुल पॉइंट है वही चेक करने का. अदरवाइज यू शुड नॉट चेक एट ईच एंड एवरी पॉइंट. हाउ कैन यू चेक एट ईच एंड एवरी पॉइंट? बिकॉज़ देयर आर इनफिनिट पॉइंट्स ना. दैट्स व्हाई. सो द मेथड नहीं, वो द कांसेप्ट इज a function said to be continuous in the closed interval a to b if it is continuous at each and every point in the open interval a to b. And for a, find the right hand limit at f of a ka value, and for b, find left hand limit at f of b ka value and just check the continuity. That's it. So this is the basic method. Of course, when you solve problems, it will make more sense. So come here. Such kind of questions are very, very common in the entrance examinations. And you can read it. f of x is continuous on 0 to 8. मतलब आपका फंक्शन 0 से लेकर 8 तक पूरा का पूरा कंटिन्यूस है. फंक्शन पूरा कंटिन्यूस है. और बोलते हैं फाइंड ए एंड बी. किस मुझे एक बात बताओ, अगर फंक्शन आपका 0 और 8 से लेकर सब जगह कंटिन्यूस है तो कैन आई सी 2 पे भी कंटिन्यूस होगा? डू यू एग्री? विल इट बी कंटिन्यूस इन 2? Yes, sir. Yes, sir. Will it be continuous at 4 also? Yes, sir. I'll say here, since f of x is continuous on 0 to 8, 0 से लेकर 8 तक पूरा कंटिन्यूस है, therefore I can say मेरा जो फंक्शन है is also continuous at x equal to 2 and x equal to 4. Do you agree, kids? Yes, sir. 1 minute. Okay. So now, I'll write it down now. At x equal to बात करेंगे. क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो आई थिंक मुझे अभी बताना नहीं पड़ेगा. ऑफ कोर्स द लिमिट विल एग्जिस्ट. हाँ कि नहीं किड्स? विल द लिमिट एग्जिस्ट? Yes.
ऑफ कोर्स। ओके, सी मैं ना ये सब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो मैं ना सीधा एक काम करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम, ये तो बोर्ड एग्जाम में तो आता नहीं है ये सब चैप्टर, जेई के लिए है, तो आपको ऑलमोस्ट ओरली कर लेना चाहिए। वो है इसका लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू इसका राइट हैंड लिमिट, ठीक है। ओके, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, आप 2 पुट कर दो तो आपको क्या मिलेगा, कहां पर 2 पुट करना है, यहाँ पर X square. 2 here and put here and equated. Okay, so I get 4 plus 2a plus 6 equal to यहाँ पर सेकंड में 2 प्लस में पुट कर देंगे, 2 प्लस मतलब 2 से ज्यादा वाले में पुट करेंगे, 3 इंटू 2 प्लस 2, तो आपको मिलेगा 10 प्लस 2a इज इक्वल टू 8, सो 2a इज इक्वल टू -2, तो a इज इक्वल टू -1। इज इट ओके? इज इट ओके किड्स? Yes, sir. Yes, sir. Similarly, we'll talk about x equal to 4 also. देखो अभी कुछ कुछ बच्चे ना बोलते हैं सर आपने 2 क्यों सिलेक्ट किया, एक बार आप बताओ मैंने 2 क्यों लिया, मैंने कोई और नंबर क्यों नहीं लिया, मैं 2 and 4 ही लूंगा और कोई नंबर नहीं लूंगा, क्यों नहीं लूंगा? टेल मी। It's related to two equations. हाँ, वो आपको 2 इक्वेशन देगा ना, आप इक्वेट कर सकते हो। और पहली बात ये है कि नॉर्मली अगर कोई बंदा बोले आपको कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, अगर कोई बंदा बोले चलो कंटिन्यूटी चेक करो, तो 0 to 2 पे थोड़ी मैं चेक करूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये तो क्वाड्रेटिक है, हाँ क्या नहीं, इज इट क्वाड्रेटिक? Yes, sir. तो क्वाड्रेटिक तो कंटिन्यूस ही होता है कि नहीं उसके इंटरवल में, हाँ क्या नहीं? Yes, sir. नाउ 3x plus 2 इज इट अ लीनियर, इज इट अ लाइन? Yes, Yes, sir. sir. वो भी कंटिन्यूस ही होगा, ये भी लाइन है, तो अपने 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 इंटरवल में तो कंटिन्यूस ही रहने वाले हैं। विच आर द रिस्कीएस्ट पॉइंट और द क्रिटिकल पॉइंट्स, टेल मी? 2 and 4, डू यू एग्री? Yes, sir. 2 पे ही चांस होता है ना कि डिसकंटिन्यूटी होगी नहीं होगी, तो हम 2 and 4 पे ही चेक करने वाले थे अगर चेक करना होता, लेकिन चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस ही है, तो मैं 2 and 4 पे डिस्कस करूंगा, 2 and 4 पे मुझे वो मैं इक्वेट कर पाऊंगा ना, तो So, Yeah. but then why have they written that 2 is greater than x, not 2 is greater than equal to x? Ayush na? Yeah. Ayush, if it is less than here, why, if it is less than equal to here, why will I put less than equal to here also? So to be clear that it is आयुष यार ऐसा मत करना तू यार, okay. ठीक है ठीक है ठीक है, लिसन, see this shows you know that somewhere or the other you have to really work hard. अच्छा वो एटलीस्ट तू बोलता तो है, तू बहुत अच्छा बच्चा है क्योंकि तू बोलता है। कुछ बच्चे ना अपना ऑडियो बंद करके बैठे रहते हैं और फिर बोलते, घर पे बोलते रहते हैं अरे मेरे को ये नहीं समझ आया, मेरे को डाउट है, फ्रेंड को कॉल करते हैं। डाउट्स पूछने का सामने, शर्माने का नहीं रहता है। अच्छा है तू, बहुत अच्छा बच्चा है तू। देख पहली बात ये, कौन आयुष, यहाँ सुन तू ठीक से। Yes, sir. देख आयुष, कोई भी फंक्शन काम करता है ना तो क्या होता है, सपोज ये कोई फंक्शन काम कर रहा है और फिर ऐसे कोई फंक्शन काम कर रहा है, ठीक है। तो जब 2 फंक्शंस काम कर रहे होते हैं ना, तो ये जो 2 है ना, तो दोनों को नहीं दे सकता, अच्छा okay sir. क्योंकि अगर तू दोनों को देगा तो यहां देख प्रॉब्लम क्या है। कोई मुझे बताएगा अगर ये दोनों को दे देगा तो क्या प्रॉब्लम है? एनीबडी नोज फंक्शंस चैप्टर? It गौतम, become one to many. हाँ देखा आप। Yeah. मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं देखो काफी सारे बच्चे ना बोलते रहे, सोचते होंगे कि साला गौतम क्या करते हैं, इतना इतना मार्क्स उसको कैसे आते हैं। नहीं, काफी सारे बच्चे जो जिनको कम मार्क्स आते होंगे। गौतम मैं तेरी तारीफ कर रहा हूं, लेकिन तू चने के झाड़ पे मत चढ़ना, सुन अभी। हाँ, दूसरे बच्चे जो क्लास में बैठे, मैं आपको बताता हूं, जो बच्चे होते हैं वो कभी कुछ जल्दी भूलते नहीं है। आई डोंट नो गौतम ने 10th में कितना स्कोर किया, इट हार्डली मैटर्स फॉर मी। Gautam and other students are also there in the class who are the school toppers and all. Why I want to convey one thing very important for you people is, if you want to compete in a national level, remember one thing, Gautam जैसे 1000 बच्चे पढ़े हैं, लाखों बच्चे हैं हमारे इंडिया में। तो अगर आप लोग अपना लेवल रेज नहीं करोगे ना, तो आप लोग हमेशा कम मार्क्स ही स्कोर करोगे। आप लोग भी अच्छे अच्छे कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो, लेकिन देखो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था गौतम पे, मैंने इमीडिएट बोला गौतम रीजन बता मेरे को, और गौतम ने एक झटके में रीजन बताया मेरे को। क्यों रीजन बताया? क्योंकि
he pays attention and he's systematic. He's like you people, he's like an average kid only. I don't consider Gautam as super intelligent. He's an average kid. But he's such a brilliant kid that even being an average kid, he has the capability to become a prodigy. Similarly, the other students sitting in the classroom, y'all are also average kids only. And y'all can become prodigies provided you follow a system and don't forget things. The problem is you don't revise. हमें revise करना जरूरी है जो चीजें पढ़ाते हैं सर. फंक्शन मैंने बहुत पहले पढ़ाया था, फिर भी इसको कैसे याद है? आई एम प्रीटी श्योर का क्लास में काफी लोग बच्चे बैठे होंगे, उनको याद होगा. बट मुझे काफी कॉन्फिडेंस है कि गौतम आंसर देगा. उसने दे दिया आंसर. सो व्हाट आई वांट टू कन्वे इज दैट अगेन कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा कि राम सर यार कितना यार सर ऐसा मत करो ना सर, अत्याचार मत करो हम पे सर. सर हम लोग इतना हमको टाइम लगता है. अरे एग्री टाइम लगता है. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. मेरे पास ऐसे बहुत वीक बच्चे भी थे जिन्होंने 99 प्लस परसेंटाइल लाया है जेई में. And I proved it years after year. It is not that I am telling you all that if you take time to understand, it's okay. I don't have any problem. My problem is that even if you take time to understand, and after understanding also, if the time comes when I ask you questions, why is that some of you are not able to answer it? This is my problem. Okay, I think I'm wasting my time much. Can I go ahead? Yes, sir. Okay, yeah. So I was saying, आयुष सुनो ध्यान से, मैं ये बता रहा था अगर यहां पर भी दोनों के लिए 2 हो जाएगा तो पता है क्या हो जाता है आयुष? आयुष किधर गया? Yes, sir. क्या हो जाता है? What is the problem? So then the it becomes one to many. one to many. है ना? One to many का मतलब क्या होता है? x का एक वैल्यू gives you y का मल्टीपल I वैल्यू. got 2 values. Yes, sir. तो फंक्शन का डेफिनेशन याद होगा. मैंने फंक्शन में एक बात बताई थी. क्या बताया था? फंक्शन लाइक अ मिक्सर ग्राइंडर. याद आया क्या? Yes, sir. या तो One to 1 one होगा या तो Many to one. हाँ. Did you understand? Yes, sir. देखो वी शुड थैंक हियर आयुष. यू नो इतना अच्छा बच्चा है, एटलीस्ट वो पूछता है जिससे उसके डाउट्स भी क्लियर होते हैं, और कुछ बच्चे जो कुछ समझते ही नहीं है उनके डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं. तो वी शुड बी थैंकफुल टू पीपल लाइक आयुष and Gautam who are there and they play a very important role in a system always. Very good, Ayush. Chalo. Can I go ahead? So, Yeah, tell me. so this function is continuous. So in both the equations, 2 will give the same value, right? Kya they are continuous for? The whole function is continuous. So when we put 2 in both the equations, it will give the same value, right? 2 in the first equation saying? Yeah, first and second. हाँ, they have to give the same value, obviously. तो अगर फर्स्ट पे पुट करेगा और सेकंड में 2 पुट करेगा ना, आपको 2 ही पुट करना है, लेकिन 2 पे चेक करेंगे, है ना? Yes, sir. हाँ, तो if you put 2 here and if you put 2 here, it should be equal only. Okay, sir. है ना? Similarly. So learn to ask your doubts. And the teacher is very happy when you clear your doubts. Remember. Okay. Similarly at 4. 4 से कम and 4 से ज्यादा. Left and right hand. तो 4 से कम पुट करेंगे तो यहां पर आएगा 3 into 4 plus 2. 4 से ज्यादा 2a into 4 plus 5b. Is it okay, kids? Yes, sir. So I get here 8a plus 5b equal to, of course, 14. Now it is pretty easy. Actually, okay, this can be done orally. I'm not doing so drama and all. You can just do it orally fatafat and get the answer, because you don't have that much time in examination, right? And you people lucky, you know, kids, आपके JEE में अभी खाली 25 questions ही आते हैं. पहले 30 questions आते थे एग्जाम में और लोगों की हालत खराब हो जाती थी. चलो, और ऊपर से अभी तो आई थिंक हाँ, अभी 25 में से 5 क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल टाइप होते हैं, और न्यूमेरिकल टाइप में नेगेटिव मार्किंग नहीं है. पहले तो 30 क्वेश्चंस आते थे ऑल एमसीक्यूज विथ हेवी नेगेटिव मार्किंग, ऑफ कोर्स -1 नेगेटिव मार्किंग, जो आपको भी है. तो मार्क्स स्कोर करना बहुत मुश्किल होता था. ओके, चलो ठीक है. सो दिस इज योर आंसर एंड आई हैव गॉट ए एंड बी का वैल्यूज. सो कैन वी मूव किड्स? Okay, this is a previous year's IIT JEE question. Okay. Now see kids, kabhi kuch IIT JEE, it's not JEE, it's actually JEE advanced question, I would rather say. Yeah, but very easy problem. Okay.
सी काफी सारे बच्चे, कभी पता है मैं बता प्रॉब्लम क्या होता है, कुछ कुछ बच्चे पता है क्या होता है कि दे कांट कोप अप ओनली, कोप अप मतलब क्या, 4 लेक्चर से कोप अप ही नहीं कर पाते, बोले कि अरे यार मंडे को हो गया, फिर वेनेसडे को लेक्चर है, फिर फ्राइडे को लेक्चर है, फिर संडे को लेक्चर है। और प्रॉब्लम क्या होता है कि ये लेक्चर्स तो होते जा रहे हैं, टॉपिक आगे बढ़ते जा रहा है, और उनका जो अभी प्रॉब्लम क्या है कि पीपल आर स्टडिंग वेरी बिजी विद द कमिंग टेस्ट, व्हिच इज गुड, बट द प्रॉब्लम इज सम पीपल ना, दे कैन फोकस ओनली वन थिंग एट अ टाइम. But unfortunately, if you want to get into a good institute, or if you want to become an engineer, even a normal engine has to be a multitasker. तो आपको मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी. तो यहां पर मेरा एक चैप्टर का एग्जाम है डेरिवेटिव्स का, जो सैटरडे को है, और करंटली चैप्टर चल रहा है कंटिन्यूटी का. तो जरूरी है कि आप लोग रेगुलरली ये चैप्टर भी एक बार रिवाइज करते रहो, मैं जो पढ़ा रहा हूं. मैं आपको होमवर्क नहीं दे रहा हूं, मैं बहुत तरस खा रहा आप लोग पे कंटिन्यूटी का, क्योंकि फिर बोले अरे यार डेरिवेटिव्स नहीं हो रहा, इतना बड़ा चैप्टर है, इतने सारे थिंग्स है, इतना सारा होमवर्क, प्लस सर कंटिन्यूटी का लेक्चर भी ले रहे हैं, प्लस सर बाद में कंटिन्यूटी का होमवर्क भी देंगे, मेरा क्या होगा, आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, आई वांट टू ड्रॉप साइंस, ब्ला 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 ब्ला. अरे यही तो चाहता है जेई. व्हाट डज द जेई वांट? दे वांट द वीक लिंक शुड फिल्ट्रेशन. जो जो बच्चे कर नहीं सकते, निकलो सिस्टम से, चलो बाहर निकलो. तो आप लोग को अपने ईगो पे लेना चाहिए, मेरे में दम है, आई एम नॉट अ पर्सन गेट आउट ऑफ द सिस्टम सो इजीली, आई एम गोना क्रैक जेई. ये एटीट्यूड जरूरी है. डोंट जस्ट रन आउट ऑफ द सिस्टम. देयर आर सम स्टूडेंट्स, एक दो बच्चे हैं जो सिस्टम से बाहर निकल गए हैं. आई कैन ब्लेम देम, दे कुड नॉट कोप अप. हर बच्चे का अपना अपना लिमिट होता है ना. तो अगर आप लोग को लग रहा है यार बहुत ज्यादा हो रहा है, अरे ज्यादा क्या हो रहा है, आप लोग तो लक्की हो यार, आप लोग को तो 14 दिन का वेकेशन मिलने वाला है दिवाली का. काफी सारे बच्चे जो कोटा वोटा में रहते हैं, जो दूसरे काफी जगह जाते हैं, उनको कुछ 14-15 दिन का वेकेशन नहीं मिलता है. देयर इज नो वेकेशन एट ऑल फॉर 2 years. हम तो आपको दिवाली वेकेशन, क्रिसमस वेकेशन, समर वेकेशन, सब वेकेशन देते हैं, फिर भी आपको लोड लग रहा है. ऐसा थोड़ी चलता है. You cannot think ना कि life should be like, आराम से बैठे, ऐसा थोड़ी होता है. You have to work hard. Your parents are working hard, so you have to work hard. चलो, क्या मैं भी मोटिवेशन देता रहता हूं, क्या करूं मैं, बोलो यार. आप लोग मार्क्स स्कोर नहीं करोगे तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है. कैन आई स्टार्ट? Yes, sir. हाँ चलो. Find alpha and beta so that the function is defined by this is continuous. लिखा है continuous on the close interval. तो यहां पर भी सिंपल सा प्रॉब्लम है, अल्फा बीटा ढूंढना है. ये कंटिन्यूस है, -π से लेकर पाई तक कंटिन्यूस है, अच्छी बात है. तो अगर -π से पाई पे कंटिन्यूस है, तो कहना है सिर्फ -π/2 पे भी कंटिन्यूस होगा. डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. π/2 में भी कंटिन्यूस ही होगा. तो चलो आगे बढ़ते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट एट x equal to -π/2, and let's talk about at x equal to π/2. चलो. Of course, the left hand limit should be equal to the right hand limit. ऊपर वाला जो साइन लिखा है, ये माइनस फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड प्लस फॉर राइट हैंड लिमिट. ओके, नाउ -π/2, माइनस मतलब ये वाला, तो यहां पर आपको -π/2 पुट करना पड़ेगा. एंड राइट हैंड लिमिट, अभी यहां पर राइट हैंड मतलब -π/2 से ज्यादा, तो यहां पर पुट करना पड़ेगा. x के बदले -π/2. Can anybody tell me what is sine of -90? Sin 90. Sine of -90 का वैल्यू कितना होता है? -1. -1 होता है. इट इज -1. Okay, similarly kids, π/2 minus and π/2 plus. Okay, the left hand limit and the right hand limit. Alpha into sine of, okay, not minus, sorry. Okay, ये वहां यहां पर π/2 माइनस मतलब यहां पर π/2 पुट करना है आपको. ठीक है,
फिर यहां पर पाई बाय 2 पुट करना है, cos of pi by 2. Okay, sin 90 is 1 and cos 90 is 0. So alpha plus beta is 0. Can I get alpha beta now, kids? What is the final answer? Chalo, tell me what is beta ka value? 1 Beta of course will be 1, and what will be alpha? minus 1. Alpha will be minus 1, and the sum is done. Is it clear, kids? Yes, sir. Okay, see, such a halwa problem, you know. Okay, now go through. I think I have spoken about it. Every polynomial function is always continuous. Remember, आप कोई भी polynomial ले लो, आप linear ले लो, suppose 3x plus 2, आप quadratic ले लो, कोई भी quadratic ले लो, degree 2 वाला, कुछ भी, आप cubical ले लो, ये सारे हमेशा continuous ही रहते हैं, because linear is a line, quadratic is a parabola, cubical is like this, something like this, you know, something like this it can be. Okay, okay. So basically, every polynomial is always a continuous function in the domain x belonging to real number. Is it clear, kids? Yes, sir. It's a theory which we should know. हमें पता होना चाहिए और कुछ नहीं. आगे. Okay, kids. ये भी पता होना चाहिए. Suppose, you know, kids. Kids, tell me, is sin x a continuous function? Yes, sir. Of course. ठीक है. Next. Is x square a continuous function? Yes, sir. Of course, x square parabola है तो continuous ही होगा. Okay, plus कर रहा हूं. अब मैं बता रहा हूं. ये भी continuous है, ये भी continuous है. तो दोनों का सम भी क्या होगा पता है? दोनों का सम भी हमेशा continuous ही होगा. Okay, similarly, sin x minus x square भी continuous ही होगा. sin x into x square भी continuous ही होगा. sin x upon x square भी continuous ही होगा. Provided x क्या नहीं होना चाहिए? x cannot be what? 0. x 0 नहीं होना चाहिए ना kids? Yes, sir. आप पढ़ो, आपको समझ जाएगा. The sum, the difference, the product, and the quotient of two continuous function is always continuous. However, f of x upon g of x is continuous at x equal to a only if your g of a should not be 0. I mean to say आपका denominator 0 नहीं होना चाहिए. Is it okay, kids? Yes, sir. Yes, sir. Similarly, आपके जो रैशनल फंक्शंस होते हैं, रैशनल क्या होता है? रैशनल कुछ ऐसा होता है, पॉलिनोमियल इन द न्यूमरेटर एंड पॉलिनोमियल इन द डिनोमिनेटर. इसको बोलते हैं रैशनल फंक्शन. रैशनल फंक्शन भी हमेशा हर जगह कंटिन्यूस होता है एक्सेप्ट वेयर द डिनोमिनेटर इज 0. तो ये कहां डिसकंटिन्यूस है बताओ? कहां पर कंटिन्यूस नहीं है बंदा? X equal to 2. हाँ, 2 पे ये कंटिन्यूस नहीं है. अच्छी बात है. Again, I am saying the people who are lagging behind because of whatever reason it is, because of not being systematic before, I am requesting you all, मैं हाथ जोड़ से आपके रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज 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 वेकेशन में, दिवाली का जो वेकेशन होगा उसमें कोई भी टीचर आपको ज्यादा होमवर्क नहीं देने वाला है. तो प्लीज उस 14-15 दिन में जो भी बैकलॉग है उसको कवर कर लेना, सो दैट दिवाली के बाद आप एकदम फ्रेश हो, कॉन्फिडेंट हो, और आप ये गलती कभी मत करना बैकलॉग का दिवाली के बाद. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो, या examine the continuity of the function on its domain. Okay, on its domain. यहां पर डोमेन क्या है? क्या लगता है फंक्शन का डोमेन क्या है आपके हिसाब से? 2 to 6. हाँ, तो ये फंक्शन का डोमेन एक्चुअली है यहां पर 2 to 6. इसका डोमेन है, मतलब डोमेन मतलब x का वैल्यू है, ये फंक्शन का डोमेन है. लेकिन इसके भी दो डेफिनेशन है. 2 to 4 में कोई और फंक्शन काम कर रहा है एंड 4 to 6 में कोई और फंक्शन काम कर रहा है. दोनों रैशनल फंक्शंस है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है.
चलो हम लोग ओरली डिस्कस करेंगे, ओरली है ये, कुछ नहीं है, ओरली करना है. ओके, किस इज इट अ रैशनल फंक्शन? Yes, sir. तो रैशनल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस except where? Except where the denominator is zero, है ना kids? Yes, sir. यहां पर आपका डिनोमिनेटर है x प्लस वन इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू माइनस वन. अरे बाबा, लेकिन किड्स x इक्वल माइनस वन डज नॉट बिलोंग टू व्हाट? Domain. 2 to 4. 2 to 4 में बिलोंग ही नहीं करता है. डू यू एग्री? Yes, sir. So can I say therefore f of x equal to 1 upon x plus 1 is continuous in 2 to 4. Do you agree? Yes, sir. Similarly, f of x equal to x plus 1 upon x minus 1 being a rational function, see, I'm writing everything for you people, but I think you all can tell me orally. Huh? Being a rational function is continuous except, and the denominator is 0. आपका डिनोमिनेटर क्या है? x minus 3, x equal to 3. But does 3 belong to the interval given? See, 3 does not belong to this interval, है ना kids? हम तो इसकी बात कर रहे हैं ना फिलहाल, हाँ क्या नहीं? Yes, sir. So 3 does not belong to 4 to 6, and therefore I can say f of x x plus 1 upon x minus 1 is continuous. See, I'm writing, but ये सब orally होता है. Continuous in 4 to 6. और कहीं पर चेक करना बाकी है क्या? और कहां पर चेक करना पड़ेगा मुझे? 4. हाँ, 4 पे क्यों चेक करना चाहिए? Because left hand limit and right hand limit you have to put in different. हाँ, एक्चुअली 4, क्योंकि हम लोग 4 को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट बोल सकते हैं आप. 4 is the point where the function is changing its nature. Do you agree? Yes, sir. उसका रूप बदल रहा है, उसकी वाणी बदल रही है, उसका नेचर बदल रहा है, वो इंसानी बदल रहा है मेरे भाई. इसके वजह से 4 पे चेक करना पड़ता है. समझ रहा है क्या? Yes, sir. ओके, चलो ठीक है. तो now see, I'm writing it down. Now let us check continuity at x equal to 4. चलो, so let's take 4 माइनस पे चेक करेंगे एंड 4 प्लस पे चेक करते हैं, ठीक है? और देखते क्या होता है. लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट. ओके, 4 माइनस पुट किया तो क्या आएगा? 1 अपॉन 4 प्लस 1. ओके, एंड 4 से ज्यादा चेक किया तो 4 पुट कर दो. 4 प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 3. 4 प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 3. So I get here 1 upon 5 and this is 5 and at x equal to 4, at 4, of course तो देख के समझ ही गया लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. फिर मैं आपको बता रहा हूं मैं f of 4 क्या आएगा. f of 4 भी 1 upon 5 ही आने वाला है ना, बिकॉज यहां पर f of 4 होगा, है ना किड्स? आई कैन पुट 4 हियर, है ना किड्स? Yes, sir. है ना? तो यहां पर हम 4 पुट, क्योंकि यहां पर इक्वल टू 4 होता है ना, तो यही फंक्शन काम करेगा at 4. So at 4 answer will be that same thing only. But it is pretty obvious, right? Left hand limit is not at all equal to right hand limit. Therefore, limit x approaching 4, f of x does not exist. Is it okay? Yes, sir. Okay. So therefore, I can say at x equal to 4, your f of x is continuous. Is it okay? चलो ठीक है, अच्छी बात है. So finally, end of the day, कहां पर डिसकंटिन्यूस से चेक कर लो. 2 to 4 पे कंटिन्यूस था, 4 to 6 पे कंटिन्यूस था, तो खाली 4 पे डिसकंटिन्यूस. So can I say therefore finally what I can say? f of x is continuous in
close interval 2 to 6, except what? 4. 4. Did you understand? Yes, sir. तो ये देखो, ये सम एक्चुअली ओरल प्रॉब्लम था, लेकिन मैंने 2 स्लाइड्स लिखा है बैठ के. क्यों लिख रहा हूं मैं? जिससे आपको समझे क्या हो रहा है. नहीं तो मैं तो ओरली डिस्कस कर लेता. अभी नेक्स्ट सम में सॉल्व नहीं करने वाला. चलो ओरली बताओ क्या है आंसर. 0 to 1 and 4 to 6 except for 5. वेरी गुड. ये फंक्शन कहां पर कंटिन्यूस है? इनफैक्ट ये पॉलिनोमियल जो ये रैशनल फंक्शन है, वेरी डिसकंटिन्यूस, at x equal to 2 and x equal to 5, है ना kids? Yes, sir. ओके, देखो 2 तो इस इंटरवल में है ही नहीं, लेकिन 5 आ रहा है देखो यहां पर. तो आई कैन से देयरफॉर द f of x is continuous in 0 to 1 and 4 to 6 except at x equal to 5, and that's the final answer. Is it clear, kids? Yes, sir. चलो अच्छी बात है. जिन जिन बच्चों को मार्क्स कम आ रहे हैं ना टेस्ट में, और जो लोग एब्सेंट रहते हैं, बी रेडी. हाँ, आई एम गोना हैव अ पेरेंट्स मीटिंग. एटलीस्ट मैं जूम पे तो सब पेरेंट्स से मिल ही लूंगा. एटलीस्ट पता तो चले ये बच्चे घर पे क्या करते हैं. कुछ बच्चे, some people have attempted paper, they sat for only 47 minutes. पेपर 1 घंटा 80 मिनट का, और बच्चा बैठता है 47 मिनट. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स ओनली 2 थिंग्स. या तो इंटरनेट चला गया था इसलिए बच्चा पूरा बैठ नहीं पाया, या तो फिर बच्चे को कुछ आता ही नहीं था और एग्जाम छोड़ के भाग गया. मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो जानता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं. चलो, okay audience, let's go ahead. Whatever minutes you sit in that exam hall, everything is there, remember. मार्क्स कम आएंगे तो क्यों कम आएंगे वो भी पूछूंगा मैं आपको. क्लास में से 20 से छोड़ के भाग गए आप लोग, टेस्ट पूरा नहीं बैठे तो भी पूछूंगा कि क्यों छोड़ के चले गए. अच्छे मार्क्स आने के बाद भी लास्ट टू why didn't you sit for 180 minutes? Be ready for all the answers. You should have. अभी some people have a problem, I'm telling you. They can't sit for 3 hours in the examination hall. I keep wondering कि 180 मिनट नहीं बैठ पाते बच्चे, 3 घंटा बैठना है, कैसे चलेगा, है ना. अब ये मत बोलो सर लॉकडाउन है, घर पे परेशान हो गए सर, हमको घर से बाहर निकलना है सर. ठीक है. तो सबके साथ प्रॉब्लम है ना, पूरे इंडिया में प्रॉब्लम है ये. सब अपने घर से बैठ के पढ़ रहे हैं ना, तो क्या प्रॉब्लम है. चलो, सब लोग कर रहे हैं तो करना पड़ेगा, कांट हेल्प इट. बस कुछ दिन और रुक जाओ यार, सब चला जाए. फिर क्लास में आना, फिर क्लास में सबकी धुलाई करूंगा. मेरे को एक बच्चों को पकड़ूंगा मैं, जो बच्चे होमवर्क नहीं करते, जो पढ़ाई नहीं करते, जो मार्क्स कम लाते हैं, जो एब्सेंट होते हैं, गिन के मैं सूद समेत इंटरेस्ट के साथ आपको छोड़ूंगा नहीं मैं आप लोगों को. जो बच्चे मार्क्स नहीं लाते हैं ना, छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को भी. और जो बच्चा अच्छा कर रहा है उसको भी नहीं छोड़ूंगा मैं. ही हैज टू परफॉर्म मोर बेटर. वी वांट ऑल इंडिया रैंकर्स हियर. वी डोंट वांट एनी कचरा रिजल्ट. चलो, okay, let's go ahead. Discuss the continuity of the function on the interval 0 to 5. I think everybody knows, right? Is it a rational function, kids? Yes, sir. So rational functions are, where are they discontinuous? They're continuous. It will be continuous in 0 to 5 except 1. Except when denominator is 0. Now that's what I get here is x cube minus 3x plus 2 equal to 0. मेरे भाई, tell me how to get x का values. We know one value is 1, so then we do synthetic division. Yes. You have to get one value by hit and trial, and I have taught you all. You can try for hit these 5 values for hitting. -2, -1, 0, 1, 2. Normally यही हो जाएगा. Sometimes half, 3/2 may also work, but normally these are the 5 values. -2, -1, 0, 1, 2. You can check these 5 values.
और नॉर्मली तो हो जाता है. So you can check it out, kids, by hit and trial. Is x equal to 1 one of the value, kids? Because 1 is satisfying the equation, right, kids? Yes, sir. And the other values we can get by synthetic division, boss. That is 1, 0, -3 and 2. I'm just writing their coefficients, okay? यहाँ पर x Yes, का value 1 है, वो उसको यहाँ लिख लेता हूँ मैं. Get 1 को नीचे, 1 into 1 is 1, 0 plus 1 is 1, 1 into 1 is 1, -3 plus 1 is -2, 1 into -2 is -2, added it becomes 0. So finally, kids, I have got it, and I already taught all this method to you all, that x cube minus 3x plus 2 therefore can be written as 1 is a root, so x minus 1, and the other three numbers are the coefficients of quadratic, that is x square plus x minus 2 equal to 0. So x minus 1, of course, यहाँ पर आएगा x plus 2 into x minus 1. So kids, can I say I've got actually two values from here, x equal to 1 and -2. Chalega, kids? Yes, sir. Okay, so but -2 does not belong to the interval, hai na, kids? Yes, sir. So finally, I can say here f of x is continuous on 0 to 5 except at 1. Is it clear, kids? Yes, sir. चलो, अच्छी बात है. चलो. Okay, now see, this is actually this used to be a question in the theory examination. Okay, and but you people will not have any theory exam of this chapter as such, because ये basically पुराने syllabus में एक question था जो नए syllabus में नहीं है, but syllabus से कुछ लेने देना है ही नहीं, because JEE में तो concepts matter करते हैं. So I think everybody knows. Do you agree sin x is a continuous function? Yes, sir. So it's continuous only, but so I'll tell you a method, how to prove it. Again, it's of no use to do it, but still let me just prove it. Okay, now see, everybody knows sin x is continuous everywhere, but how will you prove it? How will you prove it mathematically? Suppose if you want to prove it, so normally I'll say let's select any point x equal to a where a belongs to real number. तो मैं क्या करूंगा, randomly कोई भी एक point को select कर लेता हूं, okay, x equal to a, और उसको मैं and I'll do check continuity at a. मैं सिर्फ a पे continuity check करूंगा, क्योंकि अरे there are infinite real numbers. Do you agree, kids? Yes, sir. तो हर एक पॉइंट पे चेक करना, तो मतलब मैं तो बोलूं यार, मैं जन्मों तक करता रहूंगा, फिर भी मेरे सारे पॉइंट्स खत्म नहीं होंगे. So it does not make sense to check continuity everywhere. So I'll just take any random point, any real number, any random point, I will call it as a. And now what to do? Simple. Now let me call f of x as sin x. Okay, I'm showing a method now, by the way, but it's not that important, but I'm just telling you a method. So f of a will be sin of a. Equation 1. Now let's go for the right hand limit. Right hand limit. तो यहां पर मेरा फंक्शन है sin x. Okay, now you all will start laughing at me, huh? Okay, listen. Now of course I can put a here, so it becomes sin a only. Okay, so ये भी हो गया. Similarly, I can take the left hand limit, it will become sin a only if I take the left hand limit also. But in theory, what they do, I'll tell you what they do in theory. Theory sums, okay? I'll do something which is not needed by the way, but I'll do it. X equal to a plus means a से जरा सा ज्यादा, तो can I say x is a plus h? A plus means a से ज्यादा. Do you agree? Yes, sir. Next, as x approaches a, your a gets cancelled, your h will approach 0. Is it clear? Yes, sir. Good. आगे बढ़ते हैं. Limit of h approaching 0, sin of x के बदले क्या आएगा, a plus h आएगा. Is it okay? x को a plus h बोला ना, समझा गया? अरे I call x as a plus h. Is it okay? Yes, sir.
Do you know sin of a plus b का फॉर्मूला? Sin a cos b plus cos a sin b. I know you'll be thinking सर ये क्या टाइम पास चल रहा है? अरे मैं बता रहा हूं, खाली देख लो ना. Okay. Now put h के बदले 0. Put h के बदले 0. What is cos of 0? Cos of 0? 1. 1. What is sin of 0? 0. So can I say I've got the right hand limit as sin a? Do you agree? Yes, sir. Similarly, even the left hand limit will be similarly can be solved. So I'm just going to do it directly. It come out to be sin a only. So can I say from 1, 2 and 3 the function is continuous? अरे हाँ क्या नहीं? Yes, sir. Is continuous for x equal to a. Okay, therefore f of x is, and a belongs to real number. Huh? Therefore f of x is continuous for all x belonging to real number. This was a question which used to come in the board examination, okay, in the previous syllabus. Okay, but in the new textbook which you have got of 11, again, this was then in 12th standard previously. Now it has been shifted to 11th standard. Okay, so now there's no worry for board examination for you all. But yeah, I just wanted to give an explanation ki how this problem is solved, okay, in the board examination. But end of the day, I think everybody knows sine function is continuous, cos function is continuous, tan, cot, sec, cosec are all continuous in their domain. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. So we know already, okay? So I think let's move. आगे बात करते हैं. अब ये सारी चीजें मैं आपको ये सब ओरली करनी होती हैं. Kids, I'm just writing a note, you can remember. If f of x is continuous and g of x is continuous, then please remember f of g of x is also continuous, and g of f of x is also continuous. तो अगर f continuous है, g continuous है, तो सबके जो आपको याद है ना fog x gof x, याद है क्या fog x gof x? Yes, sir. Yes, sir. fog. तो ये अगर आपका f और g दोनों कंटिन्यूस है ना अगर किड्स, तो f of g of x, g of f of x ये सारे कंटिन्यूस ही होते हैं. तो I don't have to prove it, I'll just explain you all in short. Look at this guy, ये function continuous ही है. I can say here, I can say since sin x is continuous and x square is continuous. Is sin x continuous? Yes, sir. Yes, sir. Similarly, x square भी आपका continuous function ही है, parabola है, सबको पता है. Therefore, I can say sin of x square is also continuous function. Okay? तो ये भी एक कंटिन्यूस फंक्शन ही है. ओके, बस यही सब लिखना होता था एग्जाम में, लेकिन ये सब तो अभी ये सब एग्जाम में नहीं आते हैं. इट्स जस्ट ठीक है. ओके, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए. दिस ऑल थियरी व्हिच यू शुड नो. Logarithmic functions, everybody should know the logarithmic guy. Exponential function, everybody knows exponential guys. Trigonometric function, sine, cos, tan, cot, sec, cosec. Inverse circular function, ये शायद आपको अभी नहीं आता है, मैं आपको सिखाऊंगा बाद में. लेकिन inverse function भी. Modulus function, सबको पता है modulus function क्या होता है. It's like a V shape, है ना kids?
Yes, sir. ये सारे functions are always what? Continuous in their domain. Continuous in their respective domains. उनमें कभी भी कोई छेद नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है. They are continuous functions. Let's go ahead. Okay, kids, यहां देख लो. अभी यहां पर ये भी okay, यहां पर एक्चुअली मॉड फंक्शन है, बाय द वे किड्स. चलो इसको कैसे करेंगे? किड्स टेल मी, मॉड फंक्शन किसी भी तरीका का मॉड फंक्शन कंटिन्यूस ही होता है. तो दिस गाय इज कंटिन्यूस, रिमेंबर. मॉड एक्स भी कंटिन्यूस ही है. ए बाय द वे, सबको इसका ग्राफ पता है क्या? मॉड ऑफ एक्स प्लस वन का ग्राफ. सी मॉड एक्स का ग्राफ सबको पता है. आई नो दैट. मॉड एक्स का ग्राफ सबको पता होगा. होगा क्या? होना ही चाहिए. Yes. Does anybody remember mod of x plus 1? What? X plus A. Shift X one side. Shift horizontal. हाँ, एक मिनट. Yeah, it's a horizontal shift on the left hand side. Do you agree, kids? Yes, sir. By 1 unit. तो basically ये जो है ना, ये basically आपका फंक्शन हो जाता है. ठीक है. तो किड्स ये तो आई थिंक गुड. तो ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है. और मैंने आपको अभी बताया था, सम ऑफ अ कंटिन्यूस फंक्शन, सम ऑफ अ कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो व्हाट? Continuous. कंटिन्यूस. और इस फंक्शन को अगर आप मॉड मारोगे तो भी वो कंटिन्यूस ही रहने वाला है. इन शॉर्ट मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता था कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस, और सम ऑफ द टू कंटिन्यूस फंक्शंस आल्सो कंटिन्यूस. अगर आप उसको मॉड लगाओगे तो भी वो कंटिन्यूस ही रहता है. आप किसी भी फंक्शन को चिंता मत करना, उसके डोमेन में अगर ये बंदा कंटिन्यूस है तो उसका मॉड भी कंटिन्यूस ही होगा. इज इट ओके किड्स? Yes, sir. ओके, तो ये कंटिन्यूस ही है. ये सब थियरी है. ओके, कभी कभी एमसीक्यूज में काम आ जाते हैं यहाँ वहां पर. ठीक है. ओके ओके, अभी 26 से जो सम्स आने वाले हैं ना किड्स, ये हार्ड कोर जेई टाइप क्वेश्चन आएंगे. हार्ड कोर 26 ऑनवर्ड्स आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, दे आर हार्ड कोर जेई क्वेश्चन. दे आर हार्ड कोर जेई क्वेश्चंस 26 ऑनवर्ड्स. चलो, कैन आई स्टार्ट? Yes, sir. I'll start. सुनो ध्यान से. ये किसी का ऑडियो चालू है, बैकग्राउंड में कोई नॉइज आ रहा है. चलो, ओके, let me go ahead. Okay, because the question is, okay, it apparently looks simple and it's a simple question only. Okay, if you know things. Okay, पढ़ो. Discuss the continuity of the function. आपको continuity चेक करनी है of this function. कहाँ चेक करना है? At x equal to 0 चेक करना है. Okay, so everybody knows at 0 the answer is 0. Now let's check the limiting value. यहाँ लेफ्ट हैंड राइट हैंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड यही फंक्शन काम करेगा. चलो, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग है किड्स. फंक्शन आपका है x स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/x. ये आपका फंक्शन है. अब ना आप ध्यान से देखना मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, इसका लिमिट का कैसे सॉल्व कर रहा हूं. पुट 0, पुट 0. x के बदले 0. This is 0 into. What is sine of 1/0? Huh? I just want to check how many people remember. I just want to check how many of you are defined. not defined. What happens? You can you tell me what happens? It oscillates between -1 to 1.
हाँ, वेरी नाइस गौतम. देखो, वेरी गुड गौतम. गौतम को याद था मैं क्या बोलने वाला था, उसको याद आ गया. देखो कुछ बच्चों को ना याद नहीं रहता, उनको समझाने के लिए मुझे बार बार पीछे जाना पड़ता है. कहाँ गया मेरा ऑसिलेटिंग फंक्शन? 22. हाँ, ऑडियंस दिख रहा है क्या ऑसिलेटिंग फंक्शन? दिख रहा ऑसिलेटिंग फंक्शन? Yes, sir. क्या बताया था देख लो अभी आप, तो आपको समझेगा अभी. साइन एक्स अप्रोचिंग 0, साइन ऑफ 1 बाय, जब मैंने 0 पुट किया तो 1/0. इज 1/0 वेरी बिग अननोन गाय? Is it a very big unknown guy? Yes, sir. So now the problem is I know sine ka value will always between what to what. -1 to 1. So it will not give me an infinite value. It will not give me any. It will give me a finite value only. But the problem is the finite value will be between what to what. Tell me. -1 to 1. -1 to 1. The problem here is क्योंकि वो ऑसिलेट हो रहा है कंटिन्यूसली बिटवीन -1 to 1, तो बाबा मेरे को कभी पता ही नहीं, फिक्स ही नहीं होता है वो. तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि उसका वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू, फिक्स वैल्यू क्या है. और लिमिटिंग वैल्यू के लिए एक वैल्यू फिक्स होना जरूरी होता है, और ये कभी फिक्स नहीं होगा. एंड इसकी वजह से हम बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं इट फेचेस यू सम फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1. और ये गया कहां पर, कहां गया? थोड़ा ऊपर चलते. ये सब तो हो गया. Okay, sorry. So it fetches me a value. So I can write here, this guy will fetch me some finite value between -1 to 1. Is it okay, kids? Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Haan. And you get here. What is 0 into some finite value? 0. 0. Ah. So is the function continuous now? From 1 and 2, I can say f of x is continuous at x equal to 0. Do you agree, kids? Yes, sir. Okay. अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ये तो हमने सॉल्व कर लिया. ओके देखो, आप कुछ बच्चे शायद सोच रहे होंगे कि सर ने कितनी जानबूझकर, कितनी अच्छी तरह से ये वैल्यू को पर्पसली फाइनाइट करके लिखा है. देखो काफी सारे बच्चे इनफाइनाइट बोल रहे थे, बट मैंने जानबूझकर फाइनाइट बोला बिकॉज देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट. इट कैन नॉट बी इनफाइनाइट, मतलब इट कैन नॉट बी समथिंग व्हिच इज अनडिफाइंड हियर. Sine of 1/0 is not an undefined value. It's a defined value only. Do you agree it's a defined value? Yes, sir. But that defined value is between what to what? -1 to 1. मेरा धर्म संकट यहाँ पर ये था कि ये जो वैल्यू है ऑसिलेट इतना फास्ट होता है कि मुझे पता ही नहीं चल रहा है. लेकिन फायदा क्या है, सामने 0 होने की वजह से कुछ भी फाइनाइट वैल्यू होगा, 0 into फाइनाइट वैल्यू भी 0 ओनली. लेकिन अगर सपोज यहां पर मैं अगर अनडिफाइंड लिखता हूं तो ये बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा मेरे भाई, बिकॉज ये हो जाएगा 0 upon 1/0. Is it okay? So is it infinity by infinity forms type? हाँ कि नहीं? Yes, sir. है ना? तो ये सब प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं. तो आप इसको अनडिफाइंड नहीं बोल सकते, और इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म. इनडिटरमिनेट फॉर्म. 0/0 is an indeterminate form. Infinity by infinity is an indeterminate form. And of course, indeterminate form will only give you a finite value only. It will give you some feasible value. तो देखो यहां से जो आंसर मिला वो 0 आ रहा है, लेकिन वो 0 लाने के लिए आप ऐसे करते तो आपको 0 नहीं मिलता. अगर किसी बच्चे ने इन्फिनिटी लिख दिया होता तो बेचारा समझ ही नहीं पड़ता उसको. वो क्या बोलेगा, अरे सर 0 into infinity क्या लिखूं? 0 into, सर ने तो सिखाया है स्कूल में, 0 into anything is 0. अरे but the problem is infinity is a very large number and infinity into something will be infinity.
That's why the name is indeterminate form. Do you understand, audience? Yes, sir. You to understand these technicalities. Don't worry, मैं जब जेई करवाऊंगा ना लिमिट्स का, हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे about this infinity and zero and all. I have not taken JEE of limits. Huh? I will take it later. Don't worry. But for the time being, remember these technicalities and methods. So what else I want to speak? When person solves this problem, you know, जब मैंने problem देखा होगा ना, काफी सारे बच्चों के दिमाग में कुछ चल रहा होगा. क्या चल रहा होगा मैं आपको बताता हूं. ओके, मैं यहीं पर करके बता देता हूं, ठीक है? एक मिनट. ओके, बिफोर आई जो चल रहा होगा वो बताने के पहले मैं आपको कुछ और बता देता हूं. Kids, tell me, limit of x approaching 0, what is sin x by x का value? 1. 1. Okay, अब ना आप मुझे कुछ बताना, ठीक है? मैं आपको कुछ पूछूंगा, ठीक है? Limit of x approaching. आप ध्यान से आंसर देना मेरे को. Limit of x approaching, okay? अगर यहां पर सपोज यू नो 0 है, sin 1 by x upon 1 by x, इसका आंसर क्या होगा? सोच समझ के देना, क्योंकि मैं अगर कुछ पूछ रहा हूं तो कुछ सोच समझ के पूछ रहा हूं आपको. इसका आंसर क्या होगा? देखते हो कितने लोगों को समझता है, या कितने पीपल, हाउ मेनी पीपल हियर आर 0. 0? पक्का? पक्का? कॉन्फिडेंट? Yes, sir. Yes. रीजन? 1 by x will go up. So when x is approaching 0, so it will be 0 into sin 1 by x. Superb, superb, superb. Very nice. You know why I'm speaking about this? Because some people now, they take my words literally and they don't understand concept. Of course, I did tell you all, sin of x approaching 0, sin x by x is 1. But did I tell you something? And I also used to say, you know what I also used to say? I always used to say कि जो यहां पर है वो नीचे भी होना चाहिए, सेम होगा तो आंसर 1 होगा. But I also added something important which many people don't take care of. What I have to add always? It should be which form? 0 by 0. 0 by 0. 0 by 0 फॉर्म ही होना चाहिए, है ना ऑडियंस? Do you agree? Yes, sir. Now look at this slide. अगर कोई बच्चा इसको 0 पुट करेगा तो 1/0 आएगा. तो क्या नीचे वाला, इज इट 0 by 0 फॉर्म नाउ? इफ यू पुट 0, will it become 0 by 0 form? Don't tell me it is 0 by 0 form, because the problem is this will be sin of 1 by 0. Do you understand? Yes, sir. And this will be infinity. हाँ कि नहीं? And sin of 1 by 0 is what? Some finite value between -1 to 1. Do you understand? Yes, sir. So normally जब आप 0 by 0 फॉर्म बोलते हो ना, ये तो 0 by 0 फॉर्म है ही नहीं, तो आप 1 कैसे लिखोगे उसको? समझ रहा है सबको? Yes, sir. हम जो यहां डिस्कशन कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं फंडामेंटल्स, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट्स. जब आप सोचना सीखोगे तब जाके आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो, और एग्जामिनर को भी पता है कि कहां बच्चे अटकते हैं. एंड आई वाज सो श्योर व्हेन द प्रॉब्लम, मोस्ट ऑफ द किड्स व्हेन सॉ दिस प्रॉब्लम, many people would be thinking about this only. Am I true? Am I correct? I don't know. Am I correct if somebody was thinking like this about sin by x वाला प्रॉपर्टी? But this is riskiest. तो बेसिकली करना क्या होता है? करना ये होता है, हाँ, लेकिन कुछ और बता दूंगा. चलो, हाँ, बता देता हूं. हाँ, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर ये x ऊपर जाएगा, आपको मिलेगा sin of 1 by x. Limit x approaching 0. And this is similar to this problem only. तो आंसर आपका 0 ही आने वाला है. चलो, now let me check it out. देखते हैं अब भी बच्चे के आंसर देते हैं. इसका आंसर क्या है? 1. Confident? Yes, sir. Yes. This is 1 only. Is it 0 by 0 form?
Yes, sir. Yes, sir. So this is answer 1. End of the day, whenever you say sin x by x is 1, always take care at the back of the mind. It should be which form? 0 by 0. 0 by 0. 0 by 0. अभी फंडामेंटल समझा सब लोग को? Yes, sir. Very good. In short, let me speak more. In short, I can say limit of x approaching 0, x3 into sine of 1 by x will also be 0. Do you agree? Yes, sir. 4, यहां पर भी लिख सकता हूं x/4, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट एंड ऑफ द डे यू शुड अंडरस्टैंड ये आंसर हमेशा 0 ही आने वाला है. आप x का x कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, ये आपका आंसर हमेशा 0 ही देगा. ऑफ कोर्स n बिलोंग्स टू z प्लस. इज इट ओके किड्स? z प्लस मतलब क्या पता है ना? नेचुरल नंबर. हाँ क्या नहीं? Yes, sir. हाँ, गुड. $27 प्रॉब्लम. ये टाइम क्या हुआ यार? ये कर सकते हो. 27 प्रॉब्लम. फ्राइडे को मैं लंबा सेशन खींचने वाला हूं. फ्राइडे को बी रेडी फॉर 2 hours. इज इट ओके? Yes, sir. चलो अब यहां पर देख लो. मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था. किसी का बुक है क्या? एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था मैंने. कहां पर ये प्रॉब्लम चेक करो आपके बुक में. नंबर क्या है इसका? e raised to 1 by x minus 1. कुछ तो कहीं पर है. चेक करो, चेक करो. e raised to 1 by x वाला कहीं तो. 7th. एक मिनट. 7th प्रॉब्लम है. एक मिनट यार, एकदम स्टार्टिंग में ही है. सेवेंथ प्रॉब्लम ना. Okay, यार. एक मिनट. 7th प्रॉब्लम आई थिंक मैंने किसी अलग ऑर्डर में पढ़ाया होगा. रुको देख लेते हैं. हाँ. Kids, did we do this sum? We were checking continuity, right? Kids? Yes, sir. Solution देखो. f of 0 1. बाद में यहां पर नॉर्मली तो हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं लेते थे, लेकिन यहां पर जानबूझ कर लिया क्योंकि e raised to 1 by x अपना डेफिनेशन बदल जाता है, उसका वैल्यू बदल जाता है. तो जब मैंने 0 माइनस लिया तो e raised to माइनस इन्फिनिटी हो जाता है ना, 0 माइनस. और फिर e raised to इन्फिनिटी 0 होता है. तो मुझे यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट मिला था -1. जबकि मैंने राइट हैंड लिमिट की जब मैंने बात की थी तो मैंने लॉपिटल रूल अप्लाई कर दिया था ऑब्वियसली, क्योंकि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो रहा था. बिकॉज e raised to 1 by 0 इज इन्फिनिटी माइनस 1 बाय इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म. और फिर मैंने डेरिवेटिव मार के मुझे यहां से आंसर मिला 1. एंड लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सो द फंक्शन डिसकंटिन्यूअस. है ना किड्स? अरे हाँ के नहीं किड्स? Yes, sir. But now let's get back to that slide. And that slide is where? Slide is where? Okay, come here now. Read something I have written at the bottom for you people to read it. See, so nice problem. You know, examiner can how a person, it can twist a person. If a person has solved that problem, you know, and if he's in a hurry in examination, he will fatafat write, you know, okay, this function is discontinuous because he knows about this. And it is true. When x approaches 0, this function is not continuous. And we have proved it in the previous sum. But we can check it now. When this guy gets multiplied by x, it will become continuous. Let's check it. At 0, the answer is 0. Is it okay, kids? Yes, sir. Let's talk about the left hand limit. Okay, I'll write directly. I think I'll just write directly so that I don't waste my time. Okay, left hand limit. हम जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो x अप्रोचिंग 0 माइनस है x इनटू दिस एंटायर फंक्शन. क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो हमारा जो x का वैल्यू 0 से कम है. ओके, तो यहां पर तो हम 0 पुट कर ही सकते हैं, और यहां पर क्योंकि 0 से कम है तो 1/0 से कम, तो इट्स अ नेगेटिव वैल्यू. ओके, तो 1/नेगेटिव वैल्यू, स्मॉल नेगेटिव वैल्यू विल बी अ नेगेटिव इंफिनिटी.
Is it true, kids? Arey, is it true? Yes, sir. I know the answer is 0, but I'm just explaining you all. So I've got the left hand limit as 0. Is it okay, kids? And is it okay? Yes, sir. Now let's talk about the right hand limit. 0 plus. X into e raised to 1 by x minus 1 upon e raised to 1 by x plus 1. In a J examination, similar questions will only come. Similar category. थोड़ा चेंज कर देंगे और नया क्वेश्चन बन जाता है. ओके, अब 0 प्लस है तो हम क्या करेंगे? 0 प्लस के लिए मैंने क्या सिखाया था? हम क्या करते हैं नॉर्मली? ओके, आई थिंक हम एक काम कर सकते हैं, वो है लॉपिटल रूल. लेकिन मैं यहां पर लॉपिटल रूल यूज नहीं करने वाला, क्योंकि लॉपिटल के लिए क्या होता है, आप न्यूमरेटर को सेपरेटली डेरिवेटिव करोगे, डिनोमिनेटर को सेपरेटली डेरिवेटिव करोगे, है ना किड्स? Yes, sir. अगर न्यूमरेटर को आपको सेपरेट डेरिवेटिव करना है तो मुझे यूवी अप्लाई करना पड़ेगा. डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर लॉपिटल में u by v जैसा यहाँ पर कुछ नहीं है. यहाँ पर आपको करना है क्या, ये फंक्शन को सेपरेटली डेरिवेटिव करने का, न्यूमरेटर को सेपरेटली, डिनोमिनेटर को सेपरेटली. तो आप ऐसे कर सकते हो और आपको आंसर मिल जाएगा. लेकिन मैं काम करता हूं, लेट मी टेक e raised to 1 by x को कॉमन ओनली स्ट्रेट अवे. लेट मी टेक e raised to 1 by x को कॉमन स्ट्रेट अवे, व्हिच आई हैड डन इन दैट सम आल्सो. अल्टरनेटिव मेथड में मैंने यही किया था मैंने. अब ये वाला टर्म आपका कैंसिल हो जाता है. अभी अगर हम 0 पुट करने के सोचते हैं तो देखो क्या होगा, देखना यहां पर. Zero into 1 minus 1 upon e raised to 1 upon 0. Okay, remember it's 0 plus, huh? तो 1 upon मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है ये. तो 1 upon 0 will be positive infinity. Do you agree, kids? अगेन आई एम टेलिंग यू, कुछ बच्चों को समझ नहीं पड़ रहा है तो मेरे भाई आपका ये ना 0 से जरा सा ज्यादा है. 0 प्लस 0 0 0 0 0 0 0 0 है ना. ये मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं. तो इसका मतलब हो गया e raised to infinity हो जाएगा. समझ रहा है सबको? Yes. तो ये e raised to minus infinity हो जाएगा और ओके 0 या और e raised to minus infinity 0 होता है. Do you agree? तो आपका f of 0 प्लस क्या आ गया? 0 ही मिला. इज द फंक्शन कंटिन्यूअस? f of 0 is 0, left hand limit is also 0, and even the right hand limit is 0, and therefore the function is what? Continuous. Continuous. Therefore आपका जो फंक्शन है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है. Is it clear for all? Yes, sir. Yes, sir. चलो अच्छी बात है किड्स. सो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है. नेक्स्ट टाइम हम और करेंगे. एक मिनट.